Tejendra to come and introduce APPS. Good evening. Feeling kind of nervous after a long time. We are this offline. Very warm welcome, and I'm delighted to introduce APPSC. APPSC is an organization which is a formal, informal way trying to make a campus a more democratic space in order to secure the rights of either it's about a gender issue or either about SC/ST, and it got formed after Aniket Ambore death, and the kind of was a point of journey across India when Lohit Vemula case came up. So and then like a Payal Talvi case in case of medical student, and then we took a Fatima case. She died because of the exploitative institutional nature of an institution. So APPSC is doing a lot of events in order to introduce new forms of discourse which is happening in academia, informal or formal way. So right now we have been focusing on the SC/ST and RTIs. So through which earlier we are collecting a data on the PhD admission and faculty recruitment, and trying to enforce the reservation policy in institution level across the India. Yeah, thank you. I request Devdatta to introduce the speaker. So I invite Devdatta to introduce Raju. Hello everyone, I am here to introduce and extend a warm welcome to our speaker for the day, Raju Kendre. Raju is a first generation learner who hails from a nomadic tribal community in the Vidarbha region of central India. He has completed his Masters in Development Studies from the School of Oriental and African Studies at the University of London on the prestigious Chevening Scholarship. Recently, Raju has been included in Forbes India's 30 under 30 list for 2022. He has been nominated for Hindustan Times Young Achiever 30 under 30, and he is also listed on LinkedIn's Top Voices list for social impact. Raju has been engaged in tribal and rural community development for the last decade as a development practitioner. The problems he faced as a first generation learner in accessing higher education in India motivated him to launch Ekalavya India, an organization that promotes higher education and enables grassroots leadership of first generation learners in central India. Ekalavya exists to democratize access to quality higher education and leadership opportunities by working with rural and tribal students through information, coaching and mentoring interventions. In the last 5 years, their interventions have helped over 700 first generation learners to get admission in top-notch universities and development fellowship programs. Ekalavya is on a mission to empower 10,000 students through quality higher education and leadership opportunities by 2030. Thank you. So now I ask to play a video shared by We are helping first generation learning students from rural India to help them get into quality higher education institutes and social sector fellowships. My name is Prashant Chavan. I am a co-founder at Ekalavya India Foundation. In the region we are working with, specifically in the Vidarbha and Marathwada geography of Maharashtra, there is a lack of quality education. Hence, students are becoming unemployed. 12 के बाद मुझे क्या करना, कहाँ पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आया. हमारे मम्मी पापा तो ऐसे हैं कि तुम पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर में बैठ के काम
these communities we are working, SC, ST, OBCs, are underrepresented in such institutes. We have three-pronged strategy at Eklavya. We call it awareness, coaching and mentoring. एकलव्य के थ्रू हमें उससे मदद मिली, जैसे कि हमें आगे की जनरेशन के या उच्च शिक्षण के लिए जो मदद चाहिएगा, जो गाइडेंस चाहिएगा, तो जो नॉलेज ये हमें सब कुछ एकलव्य ने दिया है. हमारे लिए स्पेशल ट्रिप निकाल लेते हैं कि बाहर की दुनिया को जैसे बच्चे जानने की कोशिश करेंगे, उनके सपनों में सिर पड़ेगा. We have mentored and coached more than 1,000 students, and out of which more than 500 students got into different undergraduate and postgraduate programs in Premier Institute of Higher Education and fellowship programs. By 2030, we want to send 20,000 first generation learners in Premier Institute of Higher Education and fellowship programs. I want to see a world where every student will get opportunity to realize their potential through higher education and career development, and they become a leader in their community and inspire their generations and uplift their society. As we have seen, the smile on faces of first generation learners is enough to explain the quality of work Raju. I invite Raju to talk with us. I'm audible. As you are IITian, I will pitch my deck in front of you. Can I use Hindi, English? Yeah. I am not very pro with Hindi language, but I am comfortable in the English. I will try to mix language. Sorry. As you gone through the video, you got some basic idea, but I will go through the PPT. As we are saying that democracy, access to higher education, and enabling grassroots leadership. As my own experience and my core team, co-founding team members coming from marginalized communities, we believe that higher education is a tool for enabling the grassroots leadership. That we are working with region to build grassroots leadership in different sectors and enable social mobility among marginalized communities. I will share my own experience. In 2011, 11 year before, I came to Pune. I am from Vidarbha region, 400 kilometers away from Pune, and I think 600 kilometers away from Bangalore. And Vidarbha and Marathwada, I will also share data, some data about the issue of access to higher education in terms of data. That time I came, that was I was aspiring for IAS, UPSC. Like most of the marginalized communities to be aspired, like taking government jobs and public service commission. As I think most of those who are from north are very like same situation. Till date also, that time I think I know that UPSC civil service examination that was 3 lakh application per year. Now that is I think 12 lakh. The aspirants or application day by day increasing, but the seats we see the pattern increasing. I was also one of them. I came to Pune to pursue. I was a good student, average student. I got good marks in 12 science, but not able to go for government, GMC medical college in US. But as I want to become IS, I shifted my admission BA, general BA in Pune University. There was no immediate mentor in my life to guide about Ferguson College, as those who are from Maharashtra. Ferguson is known college in Pune, Maharashtra, also in NIRF ranking. And
I was not aware about dates and deadlines and application process. And hence, my score was good to take admission to FC, Ferguson College. I took admission in Modern College, Shivajinagar. And I struggled a lot to get hostel accommodation. And I took 10,000 from another and came to Pune. And I traveled a lot to search hostel, many non-profit organization. There are some hostel. Because of BA only, they not supported my accommodation because they want BSc students or some science faculty students. And as coming from NTVJT, there is not much vacancies at hostel level also. And not only the issue is not economic. After that, I went to TIS from Melghat and other engaged. Last 1 decade, I engaged in a grassroots organization and social grassroots movements. I realized that many micro issues and many important issues social we always use also APPSC, we learned that barrier was social, economical, cultural, because I was judged. Today I am talking in English. But that time I was with fear to talk in Marathi also. But the language Marathi was not, that my Marathi language was not accepted in Pune. Puneri Praman Bhasha. That imperial complex, like the backlog of 1,000 years. That was not, I am very young, 18 years, what we, उस टाइम तो ये पता नहीं था कि क्या करना है, मतलब ये बेसिक्स IAS बनना है कि पढ़ना है. उस टाइम अपना जो आज का AWS का जो रिजल्ट है वही नैरेट अपना मैं राम गरीब है किसान के बच्चे इसलिए छोड़ना पड़ा. तो 4 महीने में मैंने पुणे छोड़ा और आई शिफ्टेड माय एडमिशन इन ओपन यूनिवर्सिटी. टुडे आल्सो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम. मुझे ऑक्सफोर्ड और एलियस में पढ़ना था ड्यू टू माय अंडरग्रेड. ओपन यूनिवर्सिटी में मेरा ट्रांसक्रिप्ट वर्नाक्युलर में लिखा था, लाइक भारताचा भूगोल, भारताचा इतिहास, ATIS. क्या एलियस में क्या समझेंगे ना. तो ट्रांसक्रिप्ट इम्पोर्टेंट है बाहर, आपको GPA वगैरह मैटर करता है. Ivy League में एडमिशन आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम LSE एंड ऑक्सफोर्ड. तो वो डिग्री का मतलब वो विषय है. बट बाद में मैं मेलघाट में ये जो बच्चे हैं ना, दे ऑल स्टूडेंट्स दिस ऑल फ्रॉम मेलघाट. तो ये बताने का कारण ये सब जो मॉडल है या ये स्टार्टअप बोल सकते हैं, सोशल वेंचर बोल सकते हैं, एंटरप्राइज बोल सकते हैं, इस build upon the lived experience of core team and my lived experience. तो ये जो स्टूडेंट्स है, जब मैं 2012 में आई शिफ्टेड माय एडमिशन ओपन बिजनेस स्टूडेंट, दैट टाइम आई वेंट टू बेलघाट एंड बेलघाट इज नोन फॉर इन फेमस फॉर vocal is there. He also worked in that area. That area is infamous for child mortality rate, IMR, and many health issues. But not known for their culture. They have मतलब this American tribal project or बाकी nature based जो economy. They have that potential, but they never discuss in mainstream media or intellectual or even at NGO level. तो जब 2012 में मैं उस एरिया में था, the gross enrollment ratio of that area, I can say, in that periphery of 25 years where I was working with one grassroots organization, there was no single graduate person, male or female, from that area. And quality higher education उस एरिया में, quality higher education तो उनको पुणे मुंबई के अलावा नागपुर के अलावा कोई, नागपुर में भी सिलेक्टेड होती हैं कॉलेजेस. तो मेलघाट से 150 किलोमीटर एक्सेस है, ओनली एक्सेस. 12th के बाद या आश्रम स्कूल के बाद उनको एक्सेस सब डिग्री कॉलेज के लिए उनको यहाँ आना पड़ता है. और क्वालिटी के लिए फिर 500-600 किलोमीटर जो पुणे मुंबई के बाद, जो मैं मुझे 11 साल पहले यही मुद्दे जो लेके ना फिर TISS में गया. TISS जाने के बाद मुझे लग रहा है कि I was there pursuing my rural development in masters, and
people coming from urban elite pursuing rural development, जिनको अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी में ठीक से नहीं पता। तो मुझे वो थोड़ा क्वेश्चन है यार, TISS भी नॉन इंस्टीट्यूट है, इतना बोलते हैं हम डाइवर्सिफाइड इंस्टीट्यूट, बट वहाँ पे भी दिक्कत है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक डायरेक्शन बाकी सब लोग इलिटरेट थे, तो वो सब मुद्दे और बाकी कैंपस में जो अभी आपने नाम लिए पायल दीदी का या बाकी से जो हमारे साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इमोलेशन, आई वाज द पार्ट ऑफ अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर डे। तो वो जो सटल तरीके से कुछ चीज़ें होती है वो ऑलवेज इंस्पायर्ड या ऑलवेज मोटिवेट टू बिल्ड दिस मॉडल। तो ये मोटिवेशन है लिव्ड एक्सपीरियंस। मतलब वी स्टार्टेड विद 7 स्टूडेंट्स ओनली इनिशियल। आई वाज आफ्टर दैट आफ्टर TISS I went to Yavatmal. I pilot again started language. Did pilot with 7 students in the college. Yes, so the process. Most of the students are studying there. And after that, फिर हम महाराष्ट्र में वर्कशॉप्स ले रहे थे। फिर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। आफ्टर लास्ट 1.5 year we got many good response from grassroots। तो ये ऐसा है। और मिशन जो हमारा है इम्प्रूव एक्सेस ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन, हम ऐसे ही वी आर ट्राइंग टू प्रोमोट द इंस्टीट्यूशन लाइक दोज आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन। अगेन देयर इज वी कैन डिबेट ऑन दैट कि क्या पेडोलॉजी है क्या, बट टाटा इंस्टीट्यूट है या JPM जी है, IIT, IIM या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सब चीज़ें कि बच्चे जा सकता है अच्छे से कर सकता है। तो यही इंस्टीट्यूट हम प्रमोट करें। प्रॉब्लम से विदाउट हायर एजुकेशन अचीवमेंट हम माइंड हंड्रेड पुअर क्वालिटी हायर एजुकेशन जो इस एरिया में हम टारगेट कर रहे हैं, लैक ऑफ ग्रासरूट लीडरशिप। और वी बिलीव दैट हायर एजुकेशन इज अ टूल फॉर निबलिंग द लीडरशिप। जैसा कि जो हम सब्जेक्ट या टारगेट कर रहे हैं, अभी स्टेम में भी हम आके ध्यान देना चाह रहे हैं। अभी तक हमारा जो फोकस था इस ओनली लॉ, मीडिया, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, अभी भी उस तरीके से उतना कवर नहीं हो, तो यही फोकस है। तो हमको लगता है कि जो इश्यूज़ है, इवन आज का ही जो इश्यूज़ है WS वाला या बाकी जो बहुत सारे इश्यूज़ है, ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रासरूट से या मार्जिन से रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉलिसी मेकिंग में। इवन लॉ भी सी, मीडिया में हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन 1% रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मार्जिन। इवन लॉ और मीडिया में हम लॉ का फील्ड देखते पॉलिटिकल सिस्टम में। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मेरा दोस्त जो TISS से मास्टर्स करके गया हुआ, उसको टेबल मिलने के लिए दिक्कत आ रहा है। तो ये हालत है। बाकी सब इवन स्टेम में तो आप लोग है क्या रिप्रेजेंटेशन है। ये फिगर्स है ग्रॉस एनरोलमेंट शो। इसके अलावा मतलब आई डिड माय मास्टर थीसिस ऑन हायर एजुकेशन इक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू कास्ट एंड प्राइवेटाइजेशन। तो मुझे ये सिर्फ थोड़ा बहुत डाटा मिला मतलब उस टाइम, बट इसके अलावा विद इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब्स आर देयर, कातकरी, कोला, माड़िया। तो उसमें आप देखेंगे अंदर ये देखा 18%, बट कुछ कम्युनिटीज है लाइक वडार, पारदी, मतलब हमको पता ही नहीं कुछ कम्युनिटीज, वहाँ पे 1% भी क्रॉस इम्प्रूवमेंट इशू, 1%। तो हम उस लेवल पे भी माइक्रो टारगेट कर रहे थे एंड एक्शन बेस्ड रिसर्च पे भी। रिसर्च भी साइड बाय साइड वी आर ट्राइंग टू आल्सो टू डू रिसर्च एंड उसमें रिसर्च विंग करके एडवोकेसी लेवल पे भी हम काम करने का सोचते हैं। बट ये गवर्नमेंट के पास इतना डेटा है, ये दिखने को ठीक ठाक लगता है, इतना भी गैप नहीं दिखता है। अंदर जाओगे तो और एक डाटा है कि पर लैक पॉपुलेशन उसमें नहीं है। पर लैक पॉपुलेशन कितने कॉलेजेस है, तो महाराष्ट्र का 55 नंबर है ओवरऑल, और बिहार और झारखंड का आएगा 6-7 लगभग जो, और वो सेम फिगर है विदर्भ और मराठवाड़ा। विदर्भ और मराठवाड़ा जो एरिया हम टारगेट कर रहे हैं, और बाकी कुछ एरिया जैसा कालाहांडी में जाओगे उड़ीसा में, वहाँ पे भी वही हालत है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं नीति आयोग में,
वहाँ पे भी वही हालत है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। कम से कम राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान से ये है कि एक्सेसिबिलिटी है, या कम से कम अभी वो भी महाराष्ट्र स्टेट जो ऑन रोल 20 से कम है वो स्कूल 30 से कम है बंद कर रहे। बट कम से कम आप ट्राइबल हेमलेट में जाओगे, रायगढ़ में जाओगे या नंदरौर गांव में स्कूल ही पहुँचे। बट हायर एजुकेशन में बहुत इनक्वालिटी है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप जैसे प्राइमरी जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा एडमिशन लेता है, वो जब देखेंगे आप 10th और 12th और आगे ग्रेजुएशन पे, तो 10th तक ठीक ठाक रहता है। आफ्टर 11th 12th तो इज लाइक इतना आता है, और कुछ जगह 1-2% पे आता है। और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में जो हमने मैं काफ़ी मतलब स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, बट गर्ल्स एजुकेशन में मोस्टली इन ओबीसी कम्युनिटीज, शेड्यूल ट्राइब में हम देखते हैं कि 100 ज़्यादा है। और हमारे कुछ कोरकू लड़कियां हैं जो ट्राइबल एरिया से, वो फर्ग्यूसन में भी आ गई इस लास्ट 2 साल में, फर्ग्यूसन में पढ़ रही है या पुणे में पढ़ रही है। तो जो ओबीसी कम्युनिटीज है जिनके पास थोड़ा सा बहुत लैंड है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज है, जिनका थोड़ा माइंड सेट खुडर होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, तो वो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना। मतलब ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है। मेरा कम्युनिटी भी थोड़ा लैंड होल्डिंग है, तो उनका वो होता है कि दो कमी फ्रॉम एनटीटी और ओबीसी कम्युनिटीज, तो लड़कियों का बहुत गैप है पढ़ाई करने, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये डाटा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी और उसमें फीमेल रेशियो देखेगा तो बहुत बड़ा है। इनआईआरएफ का रैंकिंग का भी है कि ये हमारा मॉडल है अवेयरनेस कोचिंग एंड मेंटरिंग। तो हम अवेयरनेस में करते हैं कि इस साल वी आर टारगेटिंग मिनिमम ऑर्गेनाइजिंग 70 वर्कशॉप्स इन पर्सन। वी बिलीव दैट इन आवर मॉडल कि सोशो इमोशनल लर्निंग का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। खुद का हमारा लेटेस्ट प्रेजेंट की जहाँ तक इन पर्सन बात नहीं होगा तब तक बात उस तरीके से। तो इन पर्सन हम वर्कशॉप कर रहे थे 70 लगभग 7-8 हज़ार 10 हज़ार डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे 11-12 बच्चे और अंडर ग्रेजुएट बच्चे। तो इन पर्सन का ज़्यादा फोकस रहता है। और कोचिंग इसमें रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स करते हैं। रेसिडेंशियल वर्कशॉप में 3 डेज का होता है। उसका प्राइमरी जो मोटो होता है वो सोशल कैपिटल बिल्डअप करने का होता है, पीयर लर्निंग का होता है। और थोड़ा जैसे समझ आप IIT में पढ़िए, सितारा में पढ़ रहे, कोई आएगा या पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, आशाली आई थी ट्राई करके वर्कशॉप में। और अपने से कोई आया पूरा रहेगा वर्कशॉप डाला है नहीं सुस्मित, हाँ सुस्मित था। तो ऐसे जो अपने मेंटर्स है, जो जिनका मेंटर्स भी हमारे कि जिनका लिव्ड एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम के, जो और एम्पैथिकली ये बात कर सकते हैं। तो अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग फील्ड के मेंटर्स हम एंगेज करते हैं। तो और इस साल हमारा टारगेट है कि हमने ऑलरेडी 5 वर्कशॉप्स किए, उसमें से रेसिडेंशियली उसमें 3 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है। अलग अलग जोग्राफी अगेन फोकस की विदर्भ मराठवाड़ा, रायगढ़ में भी ट्राइबल वहाँ पर। और इस बार 280 पीपल पार्टिसिपेटेड इन 4 वर्कशॉप। अंडर ग्रेड के साथ सेम पैटर्न, 12th के बच्चे टारगेट करते और 3rd ईयर के बच्चे टारगेट करते जिनको PG करना। फिर उनका 3 महीने का इन हाउस ट्रेनिंग होता है। अभी ये जो फिगर है, फोटोज है, ये हमारा यवतमाल में सावित्री कॉलेज ऑफ सोशल वर्क है, वहाँ पे क्लासरूम में। क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज टू बिल्ड ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम पार्टनरशिप करते हैं लोकल फॉर्मेशन। इस बार हमने 3 सेंटर प्लान किए। आज ही नागपुर में इनॉग्रेशन हुआ है लिबर्टी क्लासेस के साथ। और औरंगाबाद में हम लाइट हाउस कम्युनिटी है वहाँ पे, उनके साथ एक सेंटर बोले। तो इन हाउस हम प्लान कर रहे हैं कि अंडर ग्रेड के 200 बच्चों को ट्रेन करना, 200 स्टूडेंट्स। वी आर ट्रेनिंग फॉर JNU, IIT, मतलब मेनली इस बार ह्यूमैनिटी सोशल साइंस रहेगा, टाटा इंस्टीट्यूट GM और सम फेलोशिप प्रोग्राम लाइक टीच फॉर इंडिया, वो आगे रहेंगे। और उसके बाद कंटिन्यूस 3 महीने, मतलब रेसिडेंशियल वर्कशॉप के बाद 3 महीने का प्रॉपरली
फाउंडेशन प्रिपरेटरी कोर्स होता है, उसमें हम एंट्रांस, प्रिपरेटरी कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, मतलब सॉफ्ट स्किल या जो एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या जो एंट्रांस के सब ब्लॉक के लिए थोड़ा अलग होता है, तो उस हिसाब से हम हमारा करिकुलम होता है। और कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग होता है आफ्टर एंट्रांस, मॉक इंटरव्यूज या बाकी चीज़ें। और इवन आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन इंस्टीट्यूट, तो जैसा TISS में बच्चे जाते हैं, तो वो कोशिश है कि उनके रिसर्च फाउंडेशन प्रोग्राम कैसे बिल्डअप करें, बाकी चीज़ें कैसे ध्यान दें। तो इवन हम सोच रहे हैं कि मैं अभी कैसे मेंटल हेल्थ पे, हम वेलबींग पे इतना ध्यान नहीं देते, वो भी एक मुद्दा ध्यान में रख के बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि मतलब जो ह्यूमिलेशन होता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या बाकी बैरियर एक्सेंट से लेकर छोटे मोटे इशू जो होते हैं, उसके ऐसा सामना। अभी एक TISS में APU में एक अच्छा कम्युनिटी बिल्डअप हुआ है कि आपके साथ, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर तब भी क्लास में कोई समझो 2 ही स्टूडेंट थे। आई वॉज टॉकिंग लास्ट वीक, आई वॉज टॉकिंग विद वन अशोका फेलो, अशोका वहाँ पे इट्स कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर कम्युनिटी, आई थिंक OBC। तो उसके क्लास में आउट ऑफ 26 उसको बहुत डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं मिले, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। आखिरकार वो मैंने उसको बोला कि काउंसलिंग सेशन आप ले सकते हैं या खा सकते हैं, तो वो वहाँ पे भी उसको एंटरटेन नहीं हो रहा है। अभी वो ही इज प्लानिंग टू क्विटिंग दैट प्लेस। और वो जैसा एब्रॉड होता है कि मेंटल हेल्थ वेलबींग इशू होते हैं, कि जैसा मैं सुहास में मैं खुद काउंसलिंग सेशन दिया, तो प्रॉपरली आपका ये आपको असाइनमेंट में रिलैक्सेशन मिलेगा, डिसर्टेशन में उस तरीके का सपोर्ट मिलेगा। ये प्राइवेट प्लेसेस बहुत ये बड़ा इनइक्वल कर रहा है सब, ठीक है, उसमें बारे में क्रिटिकल। तो ये अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड जो मैंने बताया कि हमारा 11-12 टारगेट ग्रुप है, तो अभी करंटली 67 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन पुणे यूनिवर्सिटी। 11 साल पहले वही जो मुद्दे थे उनके साथ मुझे पुणे छोड़ना पड़ा था, तो वहाँ पे हमारे से तो वो और कम्युनिटी बना, टोकन के तौर पर नहीं, टोकन नहीं बनाना चाहते किसी को, तो जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे डबल डिजिट में नंबर भेजेंगे, ये हमारा है। कोई इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहा है तो वहाँ पे डबल, वही फेलोशिप प्रोग्राम हमारे यहाँ जो है, इवन उस लेवल पे भी बात कर चल रहा है, एडवोकेसी लेवल पे, कि आप इंडिया से आपके शालो तरीके से मत देखिए इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन, आप थोड़ा सा उसको कास्ट को भी करना है। इसके बहुत कास्ट का बात आप थोड़ा एपोर्ड में थोड़ा सा ठीक ठाक से बात कर सकते हो, या वैसे कुछ लोग तो बात भी नहीं करना चाह रहे। ये फोटोज है हमारा, ये पुणे यूनिवर्सिटी के सामने मीटअप किया था लास्ट टाइम। अभी ये हमारा अभी वर्धा का वर्कशॉप का फोटो है, और ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम। ये अगेन की लिव्ड एक्सपीरियंस से है कि जैसा 2 साल पहले मैं ट्यूनिंग को अप्लाई कर रहा था, तो मुझे कोई थे 2-3 लोग लिंक्डइन पे लोग थे, तो कि मिले थे कि है थोड़ा पहचान के, बट नहीं मिला सपोर्ट, मतलब ऐसे रिवोल्व के लिए जो सपोर्ट चाहिए। इतना इल्यूजन बना के रखा है ना ग्लोबल स्कॉलरशिप का, चेवलिंग, फुलब्राइट, इरास्मस, डार्ट, मतलब कि यार ये सब एक ही क्लास का कास्ट का काम है ऐसा लगता है, तो बहुत इंफीरियर और डर लगता था। 2 मेरा इतना नेटवर्क है, मतलब इस डोमेन में 10-8 साल से था, 2 साल पहले की बात है। आई एम एक्टिवली डेवलपमेंट सिस्टम फॉर सिंस 2011। 2018-19 की बात है, ट्यूनिंग के बारे में मुझे डर लगता था, तभी मुझे बहुत आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम मोर देन 20 स्कॉलरशिप्स बिकॉज ऑफ डिग्री का भी प्रॉब्लम था मेरा, डिस्टेंस वाला, बट कोई नहीं था कि यार SOP क्या, थोड़ा सा जो ऐसे रैंडम एक अपना सैंपल बनाया उसको थोड़ा एडिट किया, वही हर जगह चिपका दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये मुद्दे है, तो ये मुद्दे ध्यान में रख के फिर मैं आफ्टर गेटिंग ट्यूनिंग, तो मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला। आई वाज ओनली वन स्कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र, वो भी थोड़ा बहुत टोकन इन टाइप था, ठीक है, मतलब अपना काम भी था, मैंने उस तरीके से पिच भी किया, बट वो गुस्सा था, उससे वो चैनलाइज करना था, तो 6 महीना सिर्फ ऑब्जर्व किया सब चीज़ों को, क्या है क्या नहीं, सुहास को थोड़ा सा एक अच्छा कम्युनिटी भी बिल्डअप किया, बहुत लोगों को होस्ट किया,
पार्टी में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट पार्टी को इस तरीके से मोबिलाइज किया, सोशल कैपिटलाइज किया कि ऐसा था प्रोग्राम हर जगह पिच करता था कि अरे हमको करना है। तो एक अच्छा कम्युनिटी बिल्डअप किया है मोर देन 100 मेंटर्स का। तो बाबा साहब जयंती पे लॉन्च किया है प्रोग्राम लास्ट, और अभी मोर देन 90 मेंटीज है 6 महीने से। और आ रहे हो? हाँ। तो 90 मेंटीज है, तो उनको अश्विन है क्या भाई? अश्विन है, अश्विन फ्रॉम IIT इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द GSP। तो उसमें हम टारगेट करेंगे आईवी लीग अगेन, कि भैया हम नहीं जा पाए ना, आईवी लीग अपने बच्चे जा रहे हैं। मुझे मैं भी जाऊंगा 2-3 साल में हार्वर्ड, पर अलग प्रोग्राम की लीडरशिप। बट तो हम अभी 2 साल पहले मुझे ट्यूनिंग का ऐसे व्यू करने के लिए चूज करना था। दिस टाइम एक नंबर लाजमी था, 57 पीपल सबमिटेड ट्यूनिंग एप्लीकेशन फ्रॉम ग्लोबल स्कूल अपने ग्लोबल स्कूल। तो 45 का इंटेक है इंडिया का, मुझे गारंटी कम से कम 10-12-15 लोगों को इस बार फॉर्म भरने से एक एक का 4-4, 5-5, 7-7 बार ऐसे रिव्यू हुआ। और ऐसा मतलब ये पायलट है, इसको आपको सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा देख रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, अभी सुमित सामने भी आ रहे हैं वर्कशॉप, बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो ये सेकंड वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ट्यूनिंग टारगेट किया, अभी इरास्मस भी टारगेट करेंगे, कॉमनवेल्थ है। मैं जनरली बात करता हूँ, मुझे ऐसा तो जो मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप है, मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अपना ही है, नेशनल ओवरसीज है, अभी वो भी NTT OBC का स्कॉलरशिप आया गवर्नमेंट का, छत्रपति शाहू महाराज का, बहुत सारे स्टेट साउथ में भी स्कॉलरशिप्स हैं। आई थिंक तमिलनाडु प्लानिंग टू स्टार्ट स्कॉलरशिप, नॉर्थ में भी बन रहा है स्कॉलरशिप, वो भी एडवोकेसी चल रहा है। तो जो मेन स्ट्रीम स्कॉलरशिप जहाँ पे 2-4% रिप्रेजेंटेशन होगा सर, ये जो नाम लिए मिडार, ट्यूनिंग, इरास्मस या फुलब्राइट, तो यहाँ पे बच्चों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग SOP से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से लेके IIT से लेके सब इंटर्नशिप लेके। तो मुझे होप्स है कि इस बार मिनिमम 40 पीपल स्टूडेंट्स विल गेट फ्रॉम पार्शियल और फुल फंडेड स्कॉलरशिप। उसका वैल्यू होगा 12-15 करोड़ का। ये सिर्फ इन्वेस्ट है कि भाई इमोशनल टाइम का थोड़ा इन्वेस्ट है, और जो एयर बिल्डअप हुआ है उसके बाद उसको मैं बहुत इस पर बहुत काम करना है मुझे, ये इसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। तो ये प्रोग्राम बहुत सटल तरीके से, शांत तरीके से कर रहे हैं। अभी अगले साल से इसको नाम भी अच्छा देने का सोच रहे हैं, तो इसको प्रॉपर सब लेवल पे, नॉट ओनली इवन अब्रॉड भी जो अभी कास्ट का बात हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम एडवोकेसी लेवल पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ कैसे टाइप करके हमको पिच करके अपने फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स जो कम आर्टिस्ट उनको ये चीज़ें समझा सके, और थोड़ा बहुत हर स्कॉलरशिप जो आई टॉप 100-200 या बाकी सब्जेक्ट वाइज जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे हम ये हर साल कम से कम 250-300 बच्चों का कैसे अपने फर्स्ट जनरेशन लर्नर फ्रॉम आर्टिस्ट बाहर जा सकते हैं देश में, वो कोशिश रहेगी। ये सम प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो अभी तक टारगेट हुआ है, लोगों तो दिख रहे हैं कोई नहीं, तो आज तक थोड़ा अशोक अगर मुझे गुस्सा है तो वो टोकन है हमारे, तो थोड़ा सा उस पर विल वर्क हो गया। बाकी डबल डिजिट में बाकी सब है, जहाँ पे सब जगह डबल। TFR के साथ भी मेरा बहुत झगड़ा हुआ है कि इनको लगता है ना गेटो में जाके टायर 1 वाला बच्चा ही पढ़ेगा, अर्बन एलिटी पढ़ा सकता है गेटो के बच्चों, इनको कुछ लिविंग एक्सपीरियंस वगैरह, तो थोड़ा सा इस पर हम बात चल रहा है, मतलब एम्पैथेटिकली बात चल रही है, सुन रहे हो, तो वो भी होता है कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं ऐसा नहीं चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड पार्टनरशिप लेवल भाई, ये भी आप कंसिडर करो। बाकी तो ठीक है, मतलब ISDM ये बीच थोड़ा अपना शायद आपको APPSC फिलोसफी से नहीं अलाइन होगा, ये
सोशल एंटरप्राइज अपना मॉडल उस तरीके से पिच करें। तो ये 7 बच्चों से साथ शुरू किया था। अभी इस बार हम 22-23 में वी आर वर्किंग विथ 700 स्टूडेंट्स इन हाउस। और धीरे धीरे डे बाय डे ईयर बाय ईयर मोर मूवमेंट इज बिल्डिंग प्रॉपरली। उसको पेडागोगी लेवल पे, स्ट्रक्चर्ड लेवल पे, टीम के लेवल पे, रिसोर्स के लेवल पे बिल्डअप करें। हम भी सीख रहे हैं, बहुत गलतियाँ होती है, बहुत सारा गैप भी है, बहुत एक कॉन्फिडेंस है, इसको और अच्छे से कर सकते हैं। ये अगेन क्या ऐसे वी हैव मोर देन 500 केस स्टडीज। वी आर नॉट लाइक दैट NGOs कि भाई 2-4 केस स्टडी चिपकाया। हमारे पास ऐसे 500 केस स्टडीज मिलेगा। हमारे पास टीम नहीं डॉक्यूमेंट करने के लिए, या 4 ही लोग हैं अभी। तो ममता कमिंग फ्रॉम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब, तो कोलाम ट्राइब से PBTG को सोशल इनोवेशन एंड इंटर्नशिप पढ़ी है TISS से। अभी शायद ये CYD में नहीं, अलग जगह प्रोग्राम ऑफिसर काम करे। कोमल गोरडे कमिंग फ्रॉम हमें धनगर कम्युनिटी। अजीम प्रेमचंद पढ़ी है, अभी एक जगह कोऑर्डिनेट करेगा, कल जाके ये भी ग्लोबल स्कॉलर है। स्मिता स्टार्टेड द जर्नी एज अ स्टूडेंट, देन वॉलंटियर, एंड नाउ शी इज अ co-founder in Eklam. She completed her SBI Youth for India fellowship. She also completed the Harvard Aspire Leader program. That is very prestigious program. 5 स्टेज का होता है उसका राउंड, प्रॉपरली एक्सेप्टेंस रेट आई थिंक 2-4% होगा, वो उसने कंप्लीट किया। किशोर इज करंटली इन ईस्ट मुंबई। ये लड़का मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है हमेशा। ये लाइब्रेरी में बैठता है 10-12 घंटे रोज। इसके साथ सिस्टम का इतना लैंग्वेज के देखे ना, इनका कोरकू लैंग्वेज है। कोरकू लैंग्वेज जो 800,000 वर्ड का है। कितना? 800,000 वर्ड। बोली भाषा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? डायलेक्ट। डायलेक्ट रिटर्न में कहा नहीं है। तो बचपन में घर में मराठी कोरकू बोला है, डायलेक्ट फ्रॉम मेलघाट, जो वीडियो में नहीं है बट वही जो हाँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने बताया ना, अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोरकू ट्राइब, MP बॉर्डर पे होता है, MP या सतपुरा रेंज में। तो घर में कोरकू 6 में जाएगा। जैसा मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज लाइक अतिक्रमण था, लाइक कौन सी लैंग्वेज आई यार, लाइक ये एट द जॉब एज 11 मतलब 5वीं क्लास में था, तब हमको इंग्लिश आया, डर लगने लगा इंग्लिश का। उसके लिए वैसे उसने बताया कि मराठी मेरे लिए वैसे, मराठी आज भी उसका देखोगे ना, उसको वो नहीं, क्योंकि जिसका मदर टंग कोरकू है, फिर मार्केट में जाएगा, MP बॉर्डर है, मार्केट में जब जाएगा हमारे जैसा बाहर का आदमी जाएगा, उसके लिए हिंदी बोलेगा। और अभी वो इंग्लिश में पढ़ रहा है। कितना बड़ा ये लड़ाई है। हाँ, तो मैं ये है कि दो माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, बट ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि मदर टंग हमारा कल्चर बचाओ और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। इतना ये जैसे लगभग अगेन कि भाई इस एरिया से जहाँ से एक मुझे एक लड़की नहीं मिल रही थी, जिस एरिया से 15-20 गांव से, मेलघाट से, अतरू रीजन है, अतरू शायद मेलघाट जिसको पता होगा, अतरू नाम का रीजन, वहाँ से आज हमारे मोर देन 30 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अंडर ग्रेड फ्रॉम मतलब सावित्री ज्योतिराव फुले पुणे यूनिवर्सिटी में, लिबरल आर्ट्स से लेके फर्ग्यूसन में, सर परशुराम ऐसे कॉलेज में। ठीक है, तो ये फिगर है, मतलब मोर देन 700 है फर्स्ट जनरेशन में फ्रॉम हायर एजुकेशन, वो फेलोशिप प्रोग्राम है, मतलब दोनों मिला के 700 है। ये नंबर हमने काउंट नहीं किया, ज़्यादा होगा अभी जिन्होंने काम शुरू किया, जो पहले 2-3 बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग प्रोग्राम में पॉलिसी लेवल पे या डेवलपमेंट सेक्टर में काम शुरू किया। जो हमारा 1 डे वर्कशॉप होता है या वर्चुअल प्रोग्राम होता है, उसमें टोटल 25,000 बच्चों तक हम पहुँचे, मेंटर किया 1,000 बच्चों को। और एक हमारा कम्युनिटी लाइक ये, मैं आपसे भी अपील करने आया हूँ कि आपका भी ज़रूरत हमको आगे, हम स्टेप में लगभग 200 को अंडर और 100 ग्लोबल्स पर, जैसे 300 मेंटर्स का हमारा कम्युनिटी है।
तो अभी हमने ह्यूमैनिटी सोशल साइंस लॉ मीडिया, अभी हमारा अगला लड़ाई है स्टेम का। तो स्टेम में आप सभी का मार्गदर्शन सपोर्ट हमको चाहिए होगा। ये अभी रिसेंटली लॉन्च मतलब एक HNI के लिए बना है, इंडिया ग्रोथ इंडिविजुअलिज्म। ये डाटा चाहिए ना, ये हमने इतना किया है अभी 800 एडमिशन, ये इतना हम करेंगे अगले साल, तो थोड़ा उसको ठीक है ये नहीं दिखाना मतलब बजट है, रिसोर्स का बहुत दिक्कत है हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ठीक है। तो ये पार्टनर्स है हमारे, नज ने हमको एक सीड फंड दिया है, प्रवाह नाम का एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फ्रॉम 93, तो उन्होंने हमको इंक्लूडेड किया है स्वास्थ्य में थोड़ा Nudge from Bangalore. बेंगलोर, बट दे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा है उन्होंने फंड दिया कि लोन दिया? फंड दिया अच्छा है हम बात करेंगे। अच्छा तो ये एक कॉलेज है हमारा जिन्होंने हमको शुरू से, मैं आई वॉज टीचर एंड नाउ विजिटिंग यू कैन से प्रोफेसर, सावित्री चंद्र संस्कार महाविद्यालय। हमने वी आल्सो वर्क विथ RS प्रवीण कुमार सर्स, तेलंगाना सोशल वेलफेयर जो अपना रेसिडेंशियल एजुकेशन सेटिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल नो RS प्रवीण, जिन्होंने सर और बहुत अच्छा काम किया है, तो ही इज़ माई वन ऑफ माई इंस्पिरेशन। अनूप सर है अपने नालंदा वाले, तो उनके साथ हमने 2 साल पहले 50 बच्चों को 30 IPU के लिए ट्रेनिंग किया। और ये लिबर्टी क्लासेस अभी हमने नागपुर में जो शुरू किया है, आज ही लॉन्च किया है प्रोग्राम, जो 75 स्टूडेंट्स केम एट नागपुर फ्रॉम 12 डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनको 3 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये लिबर्टी क्लासेस भी फ्रॉम 1 डिकेड, दे आर फॉरेन लैंग्वेज का और बाकी रैंकिंग या यूनिवर्सिटी लेवल कुछ और रिकग्निशन CNN, वो CNN का मुझे नॉमिनेशन मिला था, आई बैकआउट बिकॉज ऑफ उनको ये भी नहीं है यार कि इंस्टीट्यूशन अलग लेवल इंडिविजुअल लेवल, वो आई गॉट नॉमिनेटेड विथ आशा वर्कर, हाउ वीक दिस इज नॉट फेयर ना, आशा वर्कर इज इंस्टीट्यूशन सही है मतलब। तो मैंने बैकआउट उनको मेल भी लिखा था मैंने, ये इंडियन ऑफ द ईयर, हाँ जो अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ठीक है, ये इसको लिवरेज कर रहे हैं हम, लिवरेज कर रहे हैं। ये हमारा टीम, स्मिता एंड आकाश स्टार्टेड जर्नी विद एज मतलब देव, दोनों ये फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे हमारे, जो जब मैं सिंगल हैंडली प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहा था यवतमाल में, जब मैं काम कर रहा था, वो फाउंडेशन बैच उन्होंने सब एकलव्य को बिल्डअप होते हुए देखा है, और वो बहुत प्रोएक्टिव, इसलिए उनको आज लीडरशिप रोल में है वो एक्टिव। और प्रशांत मेरा टीम में जूनियर था, सब क्लासमेट था, कमिंग फ्रॉम अगेन नॉमिनेटेड ट्राइब कम्युनिटी, और डेवलपमेंट उसमें एग्रेट स्टार्टअप हो रहे काम किया है, 5 साल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। और चारों हम ये भी डेवलपमेंट सेक्टर दिखाना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अर्बन एरिया लीड नहीं कर सकता, सोशल एंटरप्राइज सिर्फ ये एक पर्टिकुलर क्लास कास्ट लीड नहीं कर सकता। ये चारों लोग जो है ना, ये मार्जिन से, एक शेड्यूल कास्ट है, विजय, NTA, MTA, और हम टीम एक्सपर्ट हैं। तो ये हमको डेवलपमेंट सेक्टर को दिखाना है कि ये ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ओनली लैंग्वेज एंड एक्सेल एंड PPT यू कांट जज लीडरशिप। और दिखा रहे स्टार्टअप के 7 से शुरू किया, 700 के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अब डिस्कशन करते हैं, सॉरी फॉर माय हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी सॉरी, मतलब आपको देखना है तो मेरा थोड़ा सा इसेंस
थोड़ा सा IIT की वजह से शायद मुझे प्रेशर है, पर आपको प्रोफेसर दिलीप मंडल का मेरा एक इंटरव्यू है, उसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा और बात किया है, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा ठीक लगा और लोगों का भी फीडबैक है, ठीक बोला है मैंने, तो यू कैन वॉच दैट। ठीक है। Thank you. So now I open the floor for question and answer. And just raise your hand and ask question. सर अभी मुझे ये पूछना था, हाँ। कॉलेजेस के साथ एक्सपेक्टेशंस के साथ बात चल रही है, मतलब जैसे कि इन द सेंस कि कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, सपोज द एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड और सिलेक्टेड व्हाटएवर, बात चल रहा है मतलब क्या? ये यहाँ पे आपने बीच में बोला अशोका अशोका और एक दो इंस्टीट्यूट्स के बारे में। TFI का नहीं क्या, वी आर सेइंग दैट जैसा अपने यहाँ जो प्राइवेट फेलोशिप से समझो या इंस्टीट्यूट, जैसा TFI के हम साथ कर रहे हैं कि हम 2 साल से उनके साथ उनके सेशन प्लान कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म TFI टीच फॉर इंडिया। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, इज़ लाइक टिकट फॉर आईवी लीग। आप वो फेलोशिप करो और हार्वर्ड में जाओ, ऑक्सफोर्ड में जाओ, बहुत लोग इसके लिए ही आते हैं, स्टाइपेंड कम देता है बट बहुत लोग ऐसे ही आते हैं, मेरे साथ के क्लास में।